Hello students, how are you all? So today we are going to start the in-text and exercise solutions of chapter number 10 of class 9 science, that is gravitation. So let us start the solution without wasting any time. From the question of page number 134 state the universal law of gravitation. What is the universal law of gravitation? Universal law of gravitation means that if there is any object in the universe, it attracts the other object. It attracts the other object which is having a mass. So if there are two objects in the universe, it attracts each other. This is a simple thing about the gravitation. But when we suggest that, when we detailed study of the universal law of gravitation, then we came to know that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And for removing the proportionality, we need to put the value of g. So this is the universal law of gravitation, that the force acting between the two objects having masses m1 and m2 and the distance between the two objects is d, then the gravitational force acting between that two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So that F is equals to G m1 m2 upon d square, where for removal of the proportionality we need the constant G, and the value of G is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Hope so you have got the solutions of this one, कि हमने आपको पहले से ही सॉल्यूशन भिजवा दिया है. So you must having that, तो आप उसे ओपन रखो या तो फिर यहाँ पे ध्यान दो या तो फिर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो. If you have read out the solutions, then it will be quite easy to understand the answers of each and every one. So now moving on to the question number 2. Write the formula to find the magnitude of the gravitational force acting between the earth and object on the surface of the earth. We need the formula. We have the formula here, but we need for the object and earth. Suppose the mass of earth is me and mass of object is m, then the force acting between these two is capital G, mass product of two objects. First object is mass of earth and second is m. Now suppose the object is on the surface of the earth, then the distance between earth and the object is equals to the radius of the earth and its square. Radius of the earth and its square. So this is the formula to find the force acting between earth and the object on its surface, standing on the surface. Now moving on to the page number 136. What do you mean by free fall? What do you mean by free fall? When there is no external force acting on an object and even though it is attracted towards the earth, कि हम जब प्लेन में हैं, प्लेन से कूद गए तो हमें किसी ने धक्का नहीं लगा है, तो हमने जंप करने के लिए तो उल्टा तो हम ऊपर की तरफ कर रहे थे. इवन दो देर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एंड इवन दो द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज नोन एज फ्री फॉल. फ्री फॉल क्या होता है बेटा, कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया तो इसके ऊपर मैंने ऐसे इस तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं किया था, फोर्स नहीं अप्लाई किया था. इवन दो व्हेन वी लीव एनी ऑब्जेक्ट इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, even though it moves towards the earth, that is known as free fall, and free fall is due to the gravity of the earth, gravitational force exerted by the earth on the object. Clear? What do you mean by the acceleration due to gravity? Question number 2 of page number 136. Question number 2. What do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity means when there is a free fall. When there is a free fall, an object is moving towards the earth, its velocity is increasing constantly. क्यों हमेशा उसकी velocity increase होती जाती है. Clear? So let us see here, if the object is moving, then after suppose here the velocity is 0 meter per second because it has just started to fall. Now after 1 second its velocity is 9.8 meter per second. After another 1 second its velocity is measured, suppose 9.6 meter per second. After another 1 second its velocity is 29.4 meter per second. So here we can say that after every 1 second there is a change of 9.8, there is a change of 9.8, there is a change of
9.8, 29.4 माइनस 19.6 करोगे तो आपको 9.8 मिलेगा, 19.6 माइनस 9.8 करोगे तो 9.8 मिलेगा, 9.8 माइनस 0 देन इट इज ऑल्सो 9.8. सो देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज ये वेलोसिटी है इंक्रीज हो रही है एंड देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी. कितना चेंज है? 9.8 का. So that 9.8 is known as acceleration, and here as it is because of gravity it is known as gravitational acceleration, and its value is 9.8 meter per second square on the surface of the earth. But as earth is not circular, वो perfectly circular नहीं है, वो कैसा है बेटा? वो बीच में से थोड़ा फूला हुआ है और उनका जो पोल्स है, पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है. थोड़ा सा कैसा है बेटा? फ्लैट है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ अलग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे पोल्स पे कुछ अलग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा. बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें देन इट इज 9.8. बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं बेटा देन इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? सो दिस इज द ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बेटा of the earth, gravitational acceleration of the earth, and this is acceleration due to gravity. Now moving on to the page number 138. What is the difference between mass of an object and its weight? बहुत ही simple है. What is mass? Mass is a constant thing and mass means quantity of matter in an object. कि मेरे अंदर कितने cells है, कितने atoms है, that is my mass. Clear? Now, what is the force exerted by the earth on me is known as my weight. कि भाई यहाँ पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझ पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे लग रहा है, दैट इज माय वेट. बट मास कांस्टेंट है कि मैं मून पे जाऊँ, स्पेस पे जाऊँ, सन पे जाऊँ, मार्स पे जाऊँ, अर्थ पे रहूँ. मास डू नॉट चेंज बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज. वो कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होते. सो मास इज कांस्टेंट बट वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है. हम जो मिक्सअप कर देते हैं कॉमन सेंस में, हमें वेट को भी वही बोलते हैं. अगर आपको पूछते आपका वेट कितना तो हम कहते हैं 70 केजी, बट दैट इज एक्चुअली अवर मास. अगर हम केजी बोलते हैं दैट इज अवर मास. इफ वी आर गोइंग टू मेजर अवर वेट देन इट विल बी श्योरली न्यूटन. वो क्या होगा? न्यूटन में आएगा बिकॉज वेट मीन्स फोर्स. Weight means force. See, this is acceleration, but as it is due to gravity, it is known as gravitational acceleration. As it is due to gravity, it is known as gravitational acceleration. तो weight एक तरीके का force ही है. Force exerted on me is force. Simple. पहले तो force समझ में आ गया कि अर्थ मुझे force कर रहा है, but that is gravitational force, and gravitational force on any object is known as the weight of the object. अगर वो force because of gravity है तो उसे मैं वेट कहूंगा. अगर मुझे कोई धक्का लगाता है देन दैट इज फोर्स. दैट ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन मी. क्लियर? तो यहां पे ये फोर्स है, सिंपल फोर्स. बट इफ द फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी देन दैट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर मैं फ्री फॉल कर रहा हूं देन देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन मी. तो वहां पे वो मेरा वेट है बेटा. नाउ मून पे जाएंगे तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, सन पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, मार्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, स्पेस में बिल्कुल नहीं होगा. Clear? So the gravitational force varies. So my weight changes, but the mass remains constant. अगर मेरा मास अर्थ पे 60 kg है तो मून पे भी 60 kg है, मार्स पे भी 60 kg, सन पे भी 60 kg, स्पेस में भी 60 kg. But if my weight is 100 Newton on Earth, then there will be a change of something in moon. तो मेरा वेट मून पे चेंज होगा क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है अर्थ से, तो मेरा वेट वहां पे कम होगा. मार्स पे कुछ अलग होगा, सन पे कुछ अलग होगा, स्पेस में जीरो होगा वेट. क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है. अगर मेरे पे कोई किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है देन अमाउंट ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज वेट. क्लियर? नाउ हमने काफी डिफरेंस किया, काफी टॉपिक भी समझ लिया, रिवाइज कर लिया. मास का यूनिट होता है केजी, वेट का यूनिट होता है न्यूटन. क्लियर? मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेट को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए. मास इज कांस्टेंट, वेट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ? लास्ट लेक्चर में इसका पूरा डेरिवेशन हमने किया था.
See, now the force acting on any object on earth is dependent upon capital G, mass of earth, mass of object and radius of earth। अगर हम मून पे है बेटा, तो मून पे है तो क्या होगा फोर्स, कैपिटल G, मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। सो दिस वैल्यू चेंजेस, मास ऑफ मून का अलग होगा, मास ऑफ अर्थ कुछ अलग है, रेडियस ऑफ मून कुछ अलग है, रेडियस ऑफ अर्थ इज समथिंग डिफरेंट। सो एज मास इज लेस, मून का मास बहुत ही बहुत 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 कम है एज कंपेयर टू दी अर्थ। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मून इज 1/6 द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो मेरे पे जितना फोर्स अर्थ पे लग रहा है उससे 1/6 फोर्स मून पे लग रहा है, कम लग रहा है। क्लियर, समझ में आया? सो ग्रेविटी तो मेरा जो भी वेट मून पे है वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू माई वेट ऑन अर्थ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है। सो इफ आई एम हैविंग एन वेट ऑफ 600 न्यूटन ऑन अर्थ, then I will be having 100 Newton weight on moon, that is 1/6, that is 1/6, so 1/6 of the weight on the earth। क्लियर? क्यों? मून का मास कम है। Clear? Now questions of page number 141 excluded from the GSB 2020. Questions of page number 142 is also excluded from GSB 2020 syllabus, so we are not going to do that. Now starting from the exercise, question number 1, how does the force of gravitation between two objects changes when the distance between them is reduced to half? How does the force of gravitation force between two objects changes? What is the formula for the gravitational force? F is equals to G me into m upon r square. What is the force? Force is equals to capital G into product of masses. Suppose there are two objects m1 and m2 upon the distance between two का square. अभी हमें क्या बोला है? What is the change in force if distance is reduced to half? कि अगर पहले distance d था तो अभी distance कितना है? तो distance is equals to half of the distance, that is d by 2. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, मास में हमने कोई चेंज नहीं किया है, सो डिस्टेंस d की जगह क्या हो जाएगा? d by 2 द होल स्क्वायर। नाउ f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर बाय 4। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, d का स्क्वायर d स्क्वायर। सो डिवीजन का डिवीजन जब होता है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, सो इंटू 4। क्लियर? सो नाउ पहले कितना फोर्स था? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर इंटू क्या आया बेटा? 4। तो कितना फोर्स हुआ? इंटू 4 टाइम्स। सो इट इंक्रीजेज बाय 4 times. So it increases by 4 times. Why it increases by 4 times? Because the gravitational force is inversely proportional to the distance between them. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ही वही होता है कि अगर डिस्टेंस इज रिड्यूस तो फोर्स विल इंक्रीज, इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस देन द फोर्स विल इंक्रीज। तो एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे इनवर्सली और डायरेक्टली जब ये वर्ड यूज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैंने पहले भी समझाया है एक और बार कि मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इसीलिए वो न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में उसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब होता है एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हुआ तो दूसरा भी डिक्रीज हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज हो जाता है। सो सिमिलरली अगर हमारा डिस्टेंस रिड्यूस होता है, डिस्टेंस हाफ किया ना तो मतलब हमने कम किया, तो फोर्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, बट दैट इज हाउ इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के हिसाब से। तो d by 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, ये d by 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, सो इट इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। क्लियर? अगर आप हाफ करते हो तो, अगर आप 1/3 करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर आप 1/4 करते हो डिस्टेंस तो 16 टाइम्स फोर्स इंक्रीज होगा।
अगर आप 1/5 करते हो तो उसके स्क्वायर के हिसाब से 25 टाइम्स इंक्रीज होगा। कम कर रहे हो 1/5 कर रहे हैं। अगर हम उसे इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस को डबल करो तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज होगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। अगर डिस्टेंस ट्रिपल करते हो कि पहले 1 मीटर है, नाउ इट इज 3 मीटर, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है 9 टाइम्स डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज तो फोर्स डिक्रीज, बट इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. Clear? Inversely proportional to the square of the distance. Now moving on to the question number 2 of exercise, that is gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? Why does, कि अगर यहाँ पे हम देखें बेटा कि हम मार्कर यहाँ से मैं ड्रॉप करता हूँ और दूसरा होता है कोई एक पेपर में ड्रॉप करता हूँ, तो ऑब्वियस है मार्कर पहले नीचे चला जाएगा, पेपर को टाइम लगेगा. क्लियर? लेकिन यही चीज अगर मैं मून पे करता हूं, नीचे जा रहे हैं, पेपर भी नीचे जाएगा, मार्कर भी नीचे जाएगा. सो इट इज वन इन द सेम थिंग. नीचे जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. लेकिन अगर मैं पेपर और मार्कर, एक पेपर लेता हूं बहुत ही लाइट वेटेड पेपर और एक मार्कर लेता हूं, तो दोनों सेम स्पीड से जाएंगे when it is dropped on the moon. अगर हम मून पे बात करें तो दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगता है, दोनों की स्पीड सेम रहती है. इट मूव्स सिमिलरली, तो सेम मूवमेंट होता है. लेकिन अर्थ पे ऐसा नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज हियर वी हैव फ्रिक्शन. एयर होता है ना, एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है. एयर कैसे डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं? इन दी अपवर्ड डायरेक्शन में. सो जब भी पेपर नीचे गिर रहा है तो एयर का फोर्स कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो उतना फोर्स से अर्थ पेपर को खींच नहीं पाएगा. लेकिन उसी तरीके से अगर हम मार्कर की बात करें बेटा, तो मार्कर पे भी ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बट एयर है उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता है दैट मच वो पेपर पे एक्सर्ट करता है, क्योंकि पेपर का एरिया ज्यादा है. Paper has large area, so large amount of force is exerted by the air in upward direction. यहाँ पे एरिया बहुत कम होता है, so the smaller amount of force as well as इसका मास ज्यादा है. तो वो क्या हो जाएगा? मार्कर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कम लगेगा तो मार्कर स्पीड में नीचे जाएगा, पेपर थोड़ा सा स्लोली जाएगा. लेकिन अगर पेपर है और मार्कर है, मून पे उसको रिलीज करते हैं, देन इट मूव्स विद द सेम स्पीड बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नो फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन दी मून. वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वहां पे स्पीड सेम रहेगी. याद रखनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो दोनों के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, सेम जी लगता है, दैट इज 9.8. तो जितनी स्पीड से मार्कर जाएगा उतनी ही स्पीड से पेपर जाएगा. बट अर्थ पे हम देखते हैं कि भारी चीज जल्दी आ जाती है, हल्की चीज होती है थोड़ा धीरे धीरे आती है. वाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर. लेकिन कितनी भी भारी चीज, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑफ 1000 kg, that object is of 1000 kg and another object is of 0.001 gram only. तो ये दोनों ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. एक 1000 kg का है, एक तो 1 ग्राम का भी नहीं है. सो देयर इज a millions of difference of weight in this mass of these objects. लेकिन अगर वो मून पे आप रिलीज करते हो बेटा, if it is released on the moon, तो वो सारा एक ही स्पीड से दोनों पार्टिकल मूव करेंगे टुवर्ड्स द मून. लेकिन अर्थ पे वो चीज नहीं होती है बिकॉज देयर इज ए फ्रिक्शन ऑफ एयर, दैट इज ए फोर्स. एयर एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज बायंट फोर्स. उसे हम बायंट फोर्स कहते हैं. बायंसी वो प्रॉपर्टी होती है. सिर्फ नाम याद रखो काफी है, नाम याद ना रहे तो भी चलेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स? बायंट फोर्स. दैट द नेम ऑफ द फोर्स इज बायंट फोर्स, दैट इज एक्सक्लूडेड इन दिस GSB 2020 सिलेबस. तो उसमें ज्यादा नहीं करना है, नाम याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहता तो भी ठीक है. Now moving on to the question number 3. What is the magnitude of the gravitational force between Earth and a 1 kg object on its surface? Mass of the Earth is 6 into 10 raised to 24 kg. Radius of the Earth is 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा हमारे पास. यहाँ पे फॉर फाइंडिंग दी फोर्स फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड ए फोर्स? एंड द फॉर्मूला टू फाइंड ए फोर्स इज F is equals to capital G m1 into m2 upon distance between two का square. We have another formula, F is equals to ma. Now this A is gravitational acceleration, तो इसलिए हम G करते हैं. तो यहाँ पे मास हमें पता है 1 kg
और g की वैल्यू क्या होती है 9.8, सो दैट इज 1 into 9.8, दैट इज 9.8 न्यूटन, बिकॉज एज इट इज फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ये बहुत ही सिंपल वे में है, क्लियर। यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, F इज इक्वल्स टू जी, जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, सपोज मास कितना है 1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दैट इज अर्थ, अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, और वो हमें कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज d स्क्वायर। तो इसमें चेंज क्या हुआ, मास तो है ही, सिर्फ चेंज कितना हुआ है, दिस थिंग इज चेंज्ड, क्योंकि 1 इंटू इन सब का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा वो, तो यहां पे इन सबको सॉल्व करोगे, कट वट करोगे तो फाइनली आपको आंसर वही मिलने वाला है, दैट इज 9.8 न्यूटन, क्लियर। क्योंकि इन दोनों का आपको, आप इन दोनों को कंपेयर करो, हम जब कंपेयर करते थे दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सपोज दिस इज मास ऑफ अर्थ, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो mm कट हो जाता था और हमें स्मॉल g का फॉर्मूला क्या मिलता था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्मॉल g, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता था, दैट स्मॉल g इज इक्वल्स टू, क्लियर, तो ये mm कट हुआ, नाउ स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये स्मॉल g की वैल्यू हम इसी तरीके से जो ढूंढते थे, और इस फॉर्मूला में ये m क्या है 1 है, बाकी का तो g इंटू एम अपॉन डी, तो उतना ही है, एंड दिस इज 9.8, तो इसीलिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं m इंटू जी, दैट इज 1 इंटू 9.8, बिकॉज वी नो दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 9.8, so there is a 9.8 Newton force exerted by the earth on object having mass 1 kg, क्लियर। लेकिन आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना है, और अगर ये कैलकुलेशन करना याद नहीं रखना है तो यहां तक लिखो, थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग करना है तो करो, लास्ट में आंसर क्या डालो 9.8, क्लियर। लेकिन वो आपको, अगर आप थरोली क्लियर हो कॉन्सेप्ट से, तो आप ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो बेटा, वरना ये शॉर्टकट आपको याद भी नहीं आएगा कि क्या है, दिमाग घूमेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है तो वो हम ढूंढ नहीं सकते, उसको कैलकुलेट करते रहते और फाइनली जो आंसर मिलता है ऑब्वियसली वो गलत ही रहता है, क्लियर, क्योंकि हम बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करते हैं। एंड हाउ टू स्टॉप डूइंग दिस सिली मिस्टेक्स, प्रैक्टिस मेक्स द मैन वीमेन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 50 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वो मिस्टेक्स होती ही रहेगी और होती ही रहेगी, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, the earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Obvious है, because earth has a mass, moon has a mass, if the two objects are possessing the mass, then they would be attracted by the gravitational force. Does the earth attract moon with a force that is greater or smaller or the same as the force, कि moon अट्रैक्ट करता है अर्थ को, अर्थ अट्रैक्ट करता है मून को, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होगा दोनों तरफ से, the amount of force that is exerted by the earth on the moon will be same equal to the force exerted by the moon on the earth, तो हाँ सेम ही होगा, जितने फोर्स से अर्थ हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है बेटा, उतने ही फोर्स से हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। इफ आई एम ऑन द स्काई, कि हम कहीं पे प्लेन में, स्काई में से कूद रहा हुआ, प्लेन से कूद रहा हूं, तो आई एम फ्री फॉलिंग ऑन द अर्थ, व्हाई, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग मी, तो उतने ही फोर्स से मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट करता हूं, तो अर्थ तो कभी ऊपर नहीं आता है, अर्थ तो कभी ऊपर नहीं आता है, व्हाई, बिकॉज अर्थ हैज अ बिगर मास, इट मींस इट इज अ बिगर इनर्शिया, तो अर्थ को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज नॉट इनफ टू मूव द अर्थ। जितना फोर्स अर्थ मेरे पे लगा रहा है उतना ही फोर्स मैं अर्थ पे लगा रहा हूं, लेकिन मैं नीचे आ रहा हूं, अर्थ ऊपर नहीं आ रहा है, बिकॉज दैट मच फोर्स इज इनफ फॉर मी, but that much force is not enough to move the earth. Similarly, the force exerted by the earth on moon is equal to the force exerted by moon on earth. तो ये दोनों equal force है, but that much force is enough to move the moon around the earth, but not enough to move the earth towards the moon. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा,
क्लियर? अगर हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन बोथ द डायरेक्शन. द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट a ऑन ऑब्जेक्ट b इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट b ऑन ऑब्जेक्ट a. क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ना, एक ही फॉर्मूला से दोनों चीजें फाइंड करते हैं. मास m1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है तो भी वही फॉर्मूला है, m2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, then also we have the same formula. So there is the same formula, an equal amount of force is exerted on both the objects. Which force? Gravitational force. Clear? Now moving on to the question number 5. If the moon attracts the earth, why does earth not move towards the moon? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ मून की तरफ क्यों मूव नहीं करता है? It exerts the force on the earth, but earth has a very huge mass. It means it has a large inertia. So earth maintain its position, and that much amount of force is not enough to move the earth or attract the earth by the moon. तो मून फोर्स एक्सर्ट करता है. क्लियर? मे भी है यहाँ पे दीवार को धक्का लगाता हूं, लेकिन ये दीवार हिल नहीं रही है. क्लियर? Why? Because that much amount of force is not enough to move the wall, because wall has a higher inertia. Similarly, मून तो ट्राई तो बहुत कर रहा है, लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अर्थ है. क्लियर? तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है. क्लियर? सो इट इज अ हायर इनर्शिया, तो उसकी वजह से उसे मूव कर पाता नहीं है. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल? तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर. सो वी आर सॉल्विंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, और वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. अगर ये कर लेते हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है अपने हिसाब से बेटा, देन यू हैव thoroughly completed the chapter number 10 for GSEB 2020 एग्जाम्स. तो आपको चैप्टर 10 पूरा समझ में आ गया है. Clear? What happens to the force between two objects if mass of the one object is double? कि सपोज हम करते हैं कि there are two objects, जिसका एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, उनके बीच में डिस्टेंस d है, we have a gravitational constant and we also have a force. तो ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास हैं. Now the force is equals to capital G into m1 into m2 upon d square. Clear? This is the formula to find the force. लेकिन हमें ढूंढना है what will be the force? What will be the force if m1 is double? Mass of any object is double. तो पहले m1 था, तो अभी क्या हो गया? 2m1. अभी क्या हो गया बेटा? 2m1. Then what will be the force for the first question? What will be the force? Same formula. Capital G, mass of first object, that is 2m1. मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज m2, क्योंकि उसमें तो हमने कभी चेंज नहीं किया है, एंड द डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये 2 को मैं आगे ले लेता हूं, दैट इज 2 कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल्स टू द f, दैट इज 2f. तो फोर्स कितना हुआ? डबल हो गया. क्या होगा? दैट इज 2f. 2f यानी क्या हो गया बेटा? डबल. कि पहले f था, अभी 2f. कब 2f हुआ? इफ द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डबल. मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डबल. नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल. कि अभी डिस्टेंस कितना हो गया? पहले d था, नाउ इट इज 2d, क्योंकि इट इज डबल्ड. सो नाउ द फोर्स एक्टिंग इज इक्वल्स टू कैपिटल G फॉर क्वेश्चन नंबर 2. F2 इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 upon 2d the whole square. F2 क्यों लिखा? क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन के लिए ढूंढ रहे हैं. पहले मैंने F1 लिखा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. एंड दिस इज द जनरल फोर्स F, कि अगर मास m1 है, m2 है, डिस्टेंस d है, कैपिटल G फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना होगा? G m1 m2 upon d स्क्वायर. क्लियर? नाउ F2 में हमने क्या चेंज किया? डिस्टेंस को डबल किया, इसलिए मैंने d की जगह 2d लगाया. सो नाउ F2 इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर 4d स्क्वायर. सी नाउ हियर ये चीज तो हमें कांस्टेंट आ गई है ना, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. सो हियर आई कैन राइट F2 इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 यहाँ पे डिवीजन में. तो ये कितना हुआ? डिवीजन में 4 आया. सो इट इज
4 टाइम्स कम हुआ, सो इट इज 1/4 द एक्चुअल फोर्स, कि पहले जितना लग रहा था उससे 1/4 यानी 4 टाइम्स कम हुआ, और ऐसा लिख सकते हो 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ, क्लियर, डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। तो ऑब्वियस है ना बेटा कि अगर मास बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, अगर मास हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स डबल हो गया, लेकिन अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस इज इन डिनोमिनेटर, तो डिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, कि पहले जो m1 था उसे 2m1 किया था, तो दूसरे का भी ऑब्जेक्ट का मास कितना करते हैं 2m2, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा F3 इज इक्वल टू कैपिटल G 2m1 इंटू 2m2, क्योंकि हमें बोला गया है कि दोनों का मास हमें इंक्रीज करना है, सो नाउ 2 इंटू 2 दैट इज 4 G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 4 करके मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। नाउ G m1 इंटू m2 इज इक्वल टू F, नाउ दैट इज 4F, तो कितना हुआ, इट इज 4 टाइम्स, सो इट इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स। तो ऑब्वियस है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करते हैं तो फोर्स डबल होता है, दोनों का मास डबल करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स होता है, अगर हम डिस्टेंस डबल करते हैं तो फोर्स 1/4 टाइम कम हो जाता है, सो इट इज डिक्रीजेस 4 टाइम्स, कि पहले अगर 40 न्यूटन होता है तो ये 10 न्यूटन बन गया, अगर पहले 40 न्यूटन था तो डबल यानी 80 न्यूटन हो गया, पहले 40 न्यूटन था तो 4 टाइम्स इट इज 160 न्यूटन, क्लियर। तो यहां पे हमें उतना चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा एक्चुअल फोर्स कितना था बेटा, सपोज 40 न्यूटन, तो ये डबल यानी कितना हो गया 80 न्यूटन, 4 टाइम्स यानी 160 न्यूटन, 1/4 यानी 10 न्यूटन। सो इस तरीके से चेंज आता है whenever any of the factor is changed in the force for the gravitational force, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। Now from the question number 7 we are going to solve in the next class, तो यहाँ तक का आपका पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, आपको किस में से लिखना है, फ्रॉम द नोट्स एंड द एक्सरसाइज सॉल्यूशन दैट आई हैव सेंट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अगर किसी को नहीं मिला है देन आई हैव द नंबर 9426203911, so this is my WhatsApp number, message me on WhatsApp number, I will send the PDF of the in-text and exercise solution of this chapter in the WhatsApp. Thank you beta, thank you very much.